इस तरह जी अज जिस चीज़ की मैं लड़ाई 17 साल तो लड़दा आया, जिहड़ा मुੱਢ है पंजाब की रेजरैक्शन का, पंजाब के रिवाइवल का, मैं उस चीज़ की गल करांगा। हर बंदा ये गुहार लाउंदा कि पंजाब का खजाना खाली है, पर कोई रोड मैप नहीं दसदा कि किस तरीके दे नाल पंजाब फाइनैंशियली साउंड हो सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, खुद मुख्तियार हो सकता है। और सबसे अगर बड़ी जड़ है जिसे सींच के पंजाब आत्मनिर्भर हो सकता है, वो है पंजाब के खजाने की चोरी रोक के, पंजाब के माफिया की जेब से पंजाब का खजाना निकाल के, टैक्सेस की कंप्लायंस उनके साथ जोड़ के करीब 50,000 करोड़ रुपया जो निजी जेबों में जा रहा है, उस 50,000 करोड़ रुपए को सेंट्रल स्कीम्स में डाल के करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया पर ईयर स्टेट जनरेट कर सकता है। और क्योंकि ये रिसोर्सेज लोगों के हैं, इसलिए ये लोगों पे ही लगने चाहिए। यथागत इसके कितने ही एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जो स्टेट्स हमारे साथ शुरू हुए, जिन्होंने लिकर कॉरपोरेशन बनाई, वो हमसे कम से कम 20 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे। पंजाब की इकोनॉमी ठेके पे दे दी गई है। आई कैटेगोरिकली स्टेट, पंजाब की इकोनॉमी को ठेके पे दे दिता गया। The mind of the government has been outsourced. जेडे ठेके वसूलते भी ने, they are also compromised. कौड़ा कुट पी के अगर एजेंडा ऐतकी ठीक ना देता तो फिर you will be the same run of the mill government that has been run by two chief ministers for the last 25 years. 25 तो 30 साल का एक खमियाजा पंजाब भुगत रहा है। आज माफिया मॉडल चल रहा है स्टेट दे विच। टुडे द मॉडल विच इज ऑपरेटिव इन द स्टेट is the mafia model run by those who propagate it and are hand in gloves. पंजाब मॉडल, आम लोगों का मॉडल, कांग्रेस का मॉडल, कांग्रेस के वर्कर का मॉडल will create number one a liquor corporation, the Punjab State Liquor Corporation. Number two, Sand Mining Corporation, the Punjab State Sand Mining Corporation. These are state resources. Number three, we will have a regulatory commission, Punjab State Cable Regulatory Commission. Transport Corporation to be promoted. Policies changed. For additional sources of income. Regulation of total outdoor advertisement. जी लिकर कॉरपोरेशन है, मैं पहली ते आना, जेड़े जेड़े स्टेटा ने वैट लाई है, और क्योंकि लिकर इज आउटसाइड द जीएसटी एम्बिट, जेड़े जेड़े स्टेटा ने वैट लाई है वो डबल ट्रिपल
उस तो भी ज्यादा पैसे कमा रहे। A shining example is Tamil Nadu, which is earning around 37,000 crores. पंजाब नालों आधी खपत है, आधी खपत है पंजाब से उसकी। Excise leakages to be stopped. घट तो घट नहीं 4 तो 5,000 करोड़ रुपए की तो एक्साइज की चोरी है। शराब 200 रुपए की 2,000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। घर ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਅਡਲਟਰੇਟਡ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੀਗਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। Minimum expected income out of the liquor business in Punjab is 25,000 crores. 50,000 jobs. Current income 4,000 crore भी नहीं। ये मिनिमम 6 गुना उत्ते जा सकती है, मिनिमम। ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚਿੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੋਤਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। This has already been done in many states in the country. Corporation of production, government run distilleries, other states are doing it. Why can't Punjab do it? At the present moment the mafia is running it. ये step 2 है जी। अगर पंजाब च ठेकेदारी सिस्टम रहा तो पंजाब खड़ा नहीं हो सकता। अगर पंजाब दे काटल ना तोड़े गए पंजाब खड़ा नहीं हो सकता। पंजाब दी जमीर, पंजाब दा वकार, पंजाब दी होंद ठेकेदारां नूं बेची गई है। Step 1, excise leakages to be stopped, liquor adulteration, illegal selling stopped. VAT will be introduced. That is why it is kept out of the GST ambit, because it is very important for the state's income but not being taxed properly. Step 2, corporation of production, government run distilleries. Step 3, government to open ठेका, सरकारी ठेके होंगे जी, where youth will be given rozgar. So this is the first one. The second one is sand mining. ਤੁਸੀਂ देखा कोले की माइनिंग होती है, आपने देखा होगा मिनरल्स की माइनिंग होती है, डायमंड माइनिंग होती है, हर तरह की माइनिंग होती है। This is a very, very important source for us because we have 1,300 kilometers of riverbed which no other state has. States like Telangana from one river are earning 50 crores a week. We have a supply of 170 years. वो सप्लाई जानबूझ के काटी जाती है और एंड यूजर के लिए जहां 1,000 से 1,500 रुपए ट्रॉली मिलनी चाहिए वहां 5,000, 4,000 और 20,000 तक भी ट्रॉली गई है। Sand mining has been rampant and has not been stopped because of an excess.
बिकॉज ऑफ द ठेकेदारी सिस्टम। स्टेट अज जिन्ना मर्जी कह ले जी रेता फ्री, जिन्हें ठेके ले वो कहते नहीं देंगे भाई, जाओ कर लो जो करना है। द मोमेंट ये रेत स्टेट ओन्ड होगी, द मोमेंट इसमें स्टॉकयार्ड्स बनेंगे, द मोमेंट माफिया इज नॉट द ऑपरेटर, only if the government sells and controls, announcements can be implemented. There is nothing called the sand mining mafia, it is the transport mafia always. रेता कोई बुक्कड़ च पा के नहीं ले जाता, रेता ट्रक्कां च आउंदा। There will be two sets of trucks that will operate, एक स्टॉकयार्ड तो जिहड़ा रेता कड्डूगा, दूजा colored trucks that will take it to the source जिथों ऑर्डर आएगा। ऑनलाइन सेल ऑफ सैंड, एक 102 माइनिंग साइट्स ने जी 14 डिस्ट्रिक्ट। रेता is a natural source, government and people's property. If the government can do oil drilling, run coal mines, run airlines, then why can't we do sand mining? Why can't we have a sand mining corporation? गवर्नमेंट दे स्टॉकयार्ड होण और जिहड़ा भी ट्रक जावे उत्थे रेट होवे, डेट होवे ते रेते दा वेट होवे। एक थां ते दिखा दिओ जिथे रेट ते डेट ते वेट कोई एक बंदा सुपरवाइज करता है। और मैं कैटेगोरिकली कह रहा कि पॉलिसीज तक सैंड माइनिंग माफिया ने कैबिनेट में भी इंप्लीमेंट नहीं होने दी। इंपाउंडिंग ऑफ ट्रक्स विच हैव इलीगल सैंड, 2014 में यह पॉलिसी नोटिफाई हुई थी, एक भी ट्रक इंपाउंड नहीं हुआ। कोई ऐसा आदमी है धरती पे जो 25,000 के रेते के लिए 1 करोड़ का ट्रक इंपाउंड करा लेगा जी? एक ट्रक इंपाउंड नहीं हुआ आज तक। Therefore, colored trucks will operate, उन पे कंप्यूटर चिप्स लगी होंगी और कोई भी ट्रक अगर बाहर से आता है, स्पेशली फ्रॉम पठानकोट, देयर विल बी टैक्सेस लेवीड। आज गुंडा टैक्स लेंदे 5,000 रुपया वो स्टेट के जेब च आएगा। ये बड़ा क्लियर है कि मिनिमम ऑफ 2,000 to 3,000 crores can be earned from 1,300 kilometers of pure sand run river beds. इच कोई शक होवे किसी नाल, कोई मेरे नाल बहस कर लिया। बट क्योंकि इनू माफिया पनपाउंदा रहा, गौरमेंट के कदे स्टॉकयार्ड बने नहीं। स्टॉकयार्ड चो अड कलर का ट्रक कढ़ेगा ऑनलाइन, तो फिर अगे अड कलर का ट्रक छड़ के आएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन तेलंगाना, द पॉलिसी दैट आई गेव। We talk of digital Punjab for 4-level monitoring, online bookings and fixed price. We need to fix the price of sand. जिवें शराब नहीं विकदी, लून नहीं विकदा, तेल नहीं विकदा, पेट्रोल नहीं विकदा, how is it that sand दी प्राइस कदे फिक्स नहीं की? यही कारण है कि माफिया ऑपरेट करता है। अगर सैंड दी प्राइस फिक्स हुई हुंदी कोई सवाल पैदा ही नहीं हुंदा। जिन्नी घट प्राइस उन्ना वॉल्यूम ज्यादा होएगा। ऑनलाइन बुकिंग एंड फिक्स प्राइस, यूज ऑफ आईटी इन ऑर्डरिंग, पंजाब ऑनलाइन सैंड डिलीवरिंग एंड मॉनिटरिंग, जीपीएस चिप्स ऑन ट्रक्स, फिक्स डिलीवरी टाइम फ्रॉम स्टॉकयार्ड। रेट भी होएगा, डेट भी होएगी कि जी ये फलानी दे तरीक नूं तुरिया ते फलानी तरीक नूं पहुंचेगा। पंजाब दे विच कोई जगह इहो जी दूर नहीं जिहड़ी एक दिन तो वध लावे। 21 डेट के उत्ते लई फिरी तुरी जाते हैं, ना कोई चेक करता, ना गल ना कोई बात। रेट, वेट एंड डेट, यू विल फाइंड इट। डिफरेंट कलर ट्रक्स, impounding of illegal trucks, annual audit by 3 independent members of reputed firms, introduction of M-Sand,
एम सैंड है जी क्रशर चलते हैं, और बड़ी सिंपल पॉलिसी है, जदों भी बिजली चलती है 7 रुपये पर यूनिट वो चार्ज होंगे। हिमाचल की भी पॉलिसी है, बड़िया पॉलिसियां ने, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। दिस इज फॉर सस्टेनेबल माइनिंग एंड फ्यूचर जनरेशंस। ये रेवेन्यू 2 तो 3 हज़ार करोड़ रुपया, 5,000 डायरेक्ट जॉब्स ते 15 तो 20,000 इनडायरेक्ट जॉब्स स्ट्रेट अवे, और ये बढ़ता जाना। हुण आएगा जी केबल। केबल लोग कह तो देंगे सस्ती कर देंगे, ऐ कर देंगे, वो कर देंगे, पर किसी ने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया अज तक। केबल का रेगुलेटरी कमीशन बनाना बहुत जरूरी है। 2007 के बादलों की सरकार आई सी ते आके मोनोपली बनाई, उदू पहला कोई मोनोपली नहीं सी। देयर वर मल्टीपल एमएसओ, और चोर दी मां एमएसओ है, इको ही है लुधियाने च, पता नहीं हुण ਉਹਦੇ ਤੇ रेड रूट जी तो पाई है, पर उदू बाद की निकलिया किसी को कुछ नहीं पता। अंडर द गाब्स वी विल ओपन द सिस्टम टू मल्टीपल प्लेयर्स कंपीटिशन। 6 होण एमएसओ 7 होण, ये मोनोपली तोड़ांगे असीं। अज की डेट दे विच 70 तो 80% फास्टवे मोनोपली है, 70 to 80%। It does not share the real data of the number of TVs for GST collection. घट तो घट 2 करोड़ टीवी है, टीवी सैट पंजाब 10 दे 10 लाख ने। रेडा पईयां ने सर्विस टैक्स की भी हजारां करोड़ रुपए की चोरी है। 2/3 television sets are not reported, hence GST loss। स्टेट की प्रॉपर्टी नूं इस्तेमाल करते हैं, जिथे देखो कहीं तार पा देंगे, जदों देखिए नवी तार पा देंगे। स्टेट के पोलों नूं यूज करते हैं, वायर जोन, पोल जोन, बट दे डोंट पे रेंट टू द स्टेट फॉर यूटिलाइजिंग पीपल्स रिसोर्सेज। हेंस गवर्नमेंट कैन लेवी कैरेज फी। असी कैरेज फी लावांगे जी, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈनल ने वो सैटेलाइट ਤੇ चलते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता पैसा सारा। लेकिन ਜਿਹੜਾ स्टेट के पोलों के उत्ते, स्टेट की जमीन के थले, स्टेट की प्रॉपर्टी को यूज करके किसी भी अगर चैनल ने स्टेट की प्रॉपर्टी को यूज करके केबल के उत्ते आना है, उन्होंने कैरेज फीस देनी पएगी जी स्टेट को। ही विल हैव टू पे कैरेज फीस। बिकॉज ऑफ दी मोनोपोली एंड यूजर के लिए जो बंदा केबल देख रहा है, उन्होंने बहुत महंगे रेटों के उत्ते केबल लेनी पैंदी है। जिदा ही कंपीटिशन क्रिएट करोगे 400 तो 200 आ जाएगी ये। तुम 6 एमएसओ ले आओगे, 400 तो 200 आएगी ये। स्टेट को अड पैसा आएगा। A minimum of 3,000 to 5,000 crores is the expected revenue from cable regulation। हुण की हो रहा है? हाई रेट फॉर कंज्यूमर्स, लो इनकम टू स्मॉल केबल ऑपरेटर्स, करप्शन फॉर लार्ज चैनल्स, फीस टेकन फ्रॉम चैनल्स टू रन ऑन केबल। जड़ा बड़ा चैनल आता उन्होंने कहना है फास्टवे वाला, नहीं तो कट देंगे इन्ने पैसे दे। ये तो थोनू भी पता सारा, तुसी भी भोग रहे हो, बड़े भोग रहे। कई दसते हैं, कई नहीं दसते। जेडे वड्डे चैनल चलते भी है, वो भी तां ही चलते हैं भाई मोटा माल आता। एंड दैट्स अ क्लीयर थिंग। इस करके ये बड़ी सिंपल जी गल है कि सोल्यूशन ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ओपन द सिस्टम टू मल्टीपल प्लेयर्स कंपीटिशन। देयर विल बी 5 to 6 MSOs, चाहे 10 होण, जिन्ने आउंदे आ मोर द मेरियर। बिकॉज ऑफ द कंपीटिशन लोकल ऑपरेटर्स कैन सिलेक्ट देयर चॉइस।
Hence low rates and more profits to the LCOs. ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ LCO ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰੱਖੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। Additional sources of revenue, GST and carriage fee, 2000 crore पक्का every year. As a rule, पिछले 5 साल तक का जो लॉस स्टेट ने झेलिया, जो लॉस पिछले 5 साल तक का 5000 करोड़ तक का, उसकी रिकवरी भी की जा सकती, एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल। एंड ऑब्जेक्टिव है सस्ती केबल लोगों को, जी 450 400 लै रहे हैं 200 मिले, इस तरह होएगी सस्ती केबल। गुरबाणी का प्रसार, यह धंधा नहीं होएगा। स्टेट का चैनल सर्व सांझी गुरबाणी नूं दुनिया के हर घर तक लेके जाएगा, जिहड़ा चाहेगा वो देख सकेगा। ये किसी एक घर का धंधा बनने वास्ते नहीं है। Therefore, स्टेट टेलीविजन जिथे विधानसभा का सैशन पूरे का पूरा आया करेगा जी, किसी एक बंदे नूं दिखाने लई नहीं आएगा कि एक नूं ही दिखाना, जो दूजा बोलता तो बत्ती गुल। ये बहुत हो गया। ये गल्लां मैं सारे पंजाब नाल करनियां ने, ना कोई परवाह पहला सी ना अज है। अगे आ गया जी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट भावें जिन्नी बार मर्जी बसां बंद कर लो, जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होएगी ये बंद नहीं होएगा। To end private mafia of the Badals on profitable routes, Jalandhar, Delhi, Manali, Rajasthan, PRTC and Panbus will only run on such routes. ये प्राइवेट बसा नहीं चल सकती। शॉर्ट रूट्स, लोकल परमिट्स टू यूथ ऑफ पंजाब, एवरी विलेज 1 परमिट। ये कोई लऊगा, जो तुम परमिट लेने हो एक बस नूं चलाने लई 12-13 बंदे चाहिए। यू कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट। Non-tariff revenue other than tickets in Punjab is near zero. This includes advertisements on buses, at bus stands, kiosks, utilization of PRTC and Panbus properties to generate revenue. Office owned, rest house owned, restaurant owned, other states earn 20% revenue out of it. 20% स्टेटां दा रेवेन्यू इन्हां थावां तो है, ते पंजाब दा 0.1% भी है नहीं। 0.1%। चाहे वो एडवरटाइजमेंट बोर्ड होण, मैं एडवरटाइजमेंट पॉलिसी लियांदी सी, जिहड़ा लुधियाना 50 लाख रुपया एक साल का कमाउंदा सी, 34 करोड़ पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन होया सी, कईयां नूं पिछू पै गए। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। 36 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन होया सीगा कल्ले लुधियाने का, जिथों 50 लाख नहीं आउंदा, जाओ पता कर लो। तो जे तुसी अगर आपने ये देखना हो कि ये कियोस्क वाला सारा मिला के पनबस, पीआरटीसी बसों के पीछे जो फोटोएं लगती हैं उनको मिला के, बोर्ड्स को मिला के करीब करीब 1000 करोड़ रुपया पंजाब को आ सकता है बड़ी आसानी से, जो निजी जेबों में जा रहा है, जो 75-25 की जेब में भी जा रहा है। डिजिटाइजेशन, आई स्पोक अबाउट डिजिटल पंजाब। ये लखी टाइम टेबल नहीं बनाएगा हुण, ना लखी नूं बनाउण देने हैं, ते लखी दे नाल रल के नहीं बनाउणगे टाइम टेबल। ये टाइम टेबल डिजिटल होएगा, ऑनलाइन टिकटां जिवें सारे स्टेटां च हुंदियां होर
उतो लो। जिन्ने ल्यूक्रेटिव रूट्स ने वो पंजाब सरकार दे होणगे। टाइम टेबल प्रेपरेशन, जीपीएस सिस्टम्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, कॉल सेंटर, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टिकटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टिकटिंग। And even checking bus timetable and timings. Implementation of artificial intelligence, Internet of Things, and big data analysis for improving operational efficiency and customer service. Revenue generation 1,500 crore साहब। ਇਹਦੇ ਨਾਲ water bottling industry is a $1 billion industry all over the world. पंजाब दे दरियावां दे पानी नू ना सिर्फ वाटर चार्जिंग दे लई, ना सिर्फ लोकां दे साफ पानी पीण दे अधिकार दे लई, but also the Punjab River Water Corporation to market bottled water for Punjab and outside. ये पानी कल्ला पानी है हिंदुस्तान च जिहड़ा मिठा पानी है, जिन्हों सारी दुनिया दे विच सब तो वधिया ड्रिंकेबल पानी दे नाल नवाजिया गया, लाइक दी वाटर फ्रॉम दी एल्प्स, जिथों सोफिस्टिकेटेड मिनरल वाटर्स बनते हैं। एटलीस्ट एक कॉरपोरेशन पंजाब के लोगों को पंजाब के दरियावां का पानी पियाएगी। इट विल बी कॉल्ड रावी, व्यास एंड सतलुज। दिस इज द बेसिक इनकम एजेंडा दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। मैं लड़ता रहा सत्ता च रह के भी, सत्ता छड्ड के भी, सत्ता वालियां नाल भी, ते मैं ये मानदा कि ये करे बगैर पंजाब खड़ा नहीं होना, क्योंकि पंजाब की इनकम अज फाइनैंशियल बैंकरप्सी के उत्ते है। लेट मी टेल यू, 1,40,000 करोड़ रुपये के खर्चे है, 75,000 करोड़ रुपया असीं बोरोइंग ते लेने। पंजाब इज द मोस्ट इंडेटेड स्टेट टुडे। 25% साडी इनकम सूद च जाती है। 18,000 करोड़ रुपया जीएसटी की कॉम्पनसेशन बंद हो जानी है जून च। दैट्स अनदर चैलेंज। ते जिन्ने फ्री बीज लॉलीपॉप्स दिते जा रहे हैं, ਉਹਦਾ खर्चा अड पेगा। ਉਹਦਾ एग्जाम्पल है पेट्रोल ही 10 रुपये घटाओ तो 7,000 करोड़ रुपया स्टेट के एक्सचेकर के उत्ते बोझ पैंदा। बिजली 4,800 करोड़ रुपया। सो ऑल दिस हैज टू बी कॉम्पनसेटेड। दिस इज द क्रक्स साहब, जिहदी कोठी दाने उहदे कमले भी सियाणे। Without this, nothing will move. Without this, we cannot reverse the trend. जे किसी को इस तो बेहतर एजेंडा होवे, मैं उहदे मगर तुरन नूं तैयार हां। एक मिनट भाजी, एक मिनट। किसी को इस तो बेहतर एजेंडा होवे मगर तुरन नूं तैयार हां। कोई बंदा इस ते बहस ना चाहे, पैसे नूं तैयार हां, पर बंदा पायदार होवे, लंडी पुची नहीं। समझे जी? तो मैं जो कुछ भी कहा पार्टी के जनरल सैकटरी की सहमति के नाल ही कहा। यह मैनीफेस्टो चो जाने तो पहला उन्होंने को जाएगा, लेकिन मेरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। मैं पहला कह चुके हैं, माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस। मैं जबान दी है पंजाब के लोगों को, समझौता कोई नहीं।
It is categorical. I have fought on this not for the last 5 years. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। मैं हाईकमांड को भी जाके यही कह के आया सी, मैं तो आउंदा नहीं सी कि इट इज ऑन दिस एजेंडा दैट आई विल टेक टू द पीपल। और मैं 15 दिन पहला आया सी। ये जिन्नियां 26 लाख नौकरी दे दूं, आ फलाना कर दूं, 50,000 पक्के हो गए, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, ये क्यों नहीं हो पाता? रेता व्यू फ्री क्यों नहीं हो पाता? मास्टर क्यों दर दर भटकते हैं? डॉक्टर क्यों दर दर भटकते हैं? कच्चे एंप्लॉय क्यों भटकते हैं? मैं उन्होंने ठोक के जवाब देना। मेरे घर के मूहरे भी खड़ते, मैं उन्होंने बिच जाके खड़ के कहना भी 1000 करोड़ रुपया चाहिए जी साहब। एक भी मास्टर सड़कों से ना होंदा, 3000 करोड़ रुपया होंदा सरप्लस, एक भी धरना ना होंदा पंजाब दी सड़कों के उत्ते। और छाती ठोक के कहना यही सच है। वी कैन नॉट हैव दी ऑस्ट्रिच मेंटालिटी। सिर अपना शुतुरमुर्ग वांग असी रेत च दब के रियलिटी तो भज नहीं सकते। वी विल हैव टू फेस इट and give solutions. पे कमीशन पहले दिन तो लागू हो सकता है। अगर तुहाडे रिसोर्सेस डबल होके 1 लाख करोड़ हो की रहा तो तुसीं कर्जा लेने हो तो कर्जा मोड़ देने हो। किसी ने अपना घर इदां चलाया हो तो मैं मनण नूं तैयार हाँ। एक भी पॉलिटिशियन का घर इदां चलदा हो तो मैनूं दस दिओ। कहदा भी 10 करोड़ का घर होवे, उत्ते 200 करोड़ का करजा होवे ते वो घर के प्लाट बेच के या भांडे बेच के चलाउंदा होवे। ये इकोनॉमी के बेसिक फंडे है साहब, सबनूं पता ने, दोहराए जा चुके ने। पंजाब का फ्यूचर जिन्ना कि इहदे ते डिपेंडेंट है, मेरा भी इहदे ते डिपेंडेंट है। सवाल साहब तुहाडा एक एक करके जनाब, एक एक करके माइक तुहानूं बड़े आराम नाल जनाब, मैं तो भजदा नहीं। मैं सिद्धू साहब बहुत ही बढ़िया पंजाब मॉडल में तुसीं ब्यौरा दिता। मेरे सिर्फ 2 सवाल है सर जी। पहला सवाल तो यह है कि थोड़ा ये सारा मॉडल हवा हवाई है, ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा, ये थोड़े सांसद रवनीत बिट्टू साहब कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सिद्धू साहब कहते हैं, दावा करते हैं कि 6 बार वो इलैक्शन जीते, पर उन्होंने एक भी जगह पर जे ये मॉडल अपना जो दावा करते हैं जे इंप्लीमेंट किया तो दिखा दें, असीं मान जाएंगे। इस चीज़ को कोट अनकोट करते हैं कि सिद्धू साहब कहते हैं दाला बीजो ये करो, तो सांसद की हैसियत नाल MLA की हैसियत नाल अपने जिले का मालक होंदा है, किहड़ी जगह के उन्होंने दाल के बीज या तेल वाले बीज उगवाए या पैदा किए। दूजा सवाल मेरा ये है सर कि अगर थोड़ा ही मॉडल पंजाब कांग्रेस का जो मतलब अपना लैवल के उपर दिता है, हाईकमान इसनूं अप्रूव नहीं करती है, तो थोड़ा अगला स्टैंड क्या होएगा? थैंक यू। बड़ा सिंपल है जी, मैं किसी इंडिविजुअल को जवाब नहीं दे रहा, तो ना ही तुसीं किसी इंडिविजुअल का सिला दे के अपनी TRP बनाई हो। मैं एक सिंपल जी गल कही सी, मैं आउटडोर पॉलिसी ले आया सीगा एडवरटाइजमेंट की लुधियाने जड़ा लुधियाना 50 लाख रुपये कमाਉਂਦਾ, 34 तो 36 करोड़ रुपया पहले साल स्ट्रेट। फिर क्यों तोड़ दी गई? जिस बोर्ड तो 700 रुपये आते हैं पर स्क्वायर फुट, उत्थे 7 रुपये तो क्यों दिता गया? जाओ पता करो। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। दूजे सवाल का जवाब जो देना होगा दवांगे। अगला अगला जी। सर जी इधर देखो जनाब, इधर देखो। हाँ जी सर ये है कि जो तुसीं दस्सिया सारा कि
ਮਾਫੀਆ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ TRP ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੌਫਟ ਲੋਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਜ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਟੇ, ਦਾਲ, ਲੂਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਉਣਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਉਣਾ। पाजी पाजी सिद्धू साहब जी सिद्धू साहब सर आपने जो अभी तक टोटल रेवेन्यू बताया है वो करीबन 35,000 करोड़ रुपया बन रहा है जी। इसमें से 25% अगर इंटरेस्ट का जो दिया जा रहा है वो भी से जाएगा। करीबन कुछ कर्ज भी शायद आपने 18,000 करोड़ का बताया है। नहीं, इसमें आपने ऐड नहीं किया टैक्स कंप्लायंस। वो कितना होगा? देखिए भाई, आज की डेट में अगर बजट में देखो, अगर आज की डेट में अगर आप बजट में देखो 18,000 करोड़ है। Get your facts right, then distort them. हाँ जी, सिद्धू साहब नवजोत सिद्धू जी सिद्धू पाजी जी हाँ पाजी पाजी एक मिनट छो। ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਕਟੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਜਗਤਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਦਿਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਯੋਧਾ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਵਾਹਵਾਈ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ 110 ਦਿਨ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। 110 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 2022
ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਐ ਹੋਣਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਨਿਆਣੇ ਥੋੜਾ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਜੀ। ਮੈਡਮ 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 माइक दे दो, माइक दे दो। ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ ਮੈਮ, ਲਓ ਜੀ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। 1980 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਹਵਾ, ਇਹ ਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਮਾਡਲ ਆ? ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਰੂਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰਾਜ ਨਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 4 ਖੇਤ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ 9 ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਖੋਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ, ਪਾਣੀ এনवायरमेंट ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ, ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰੋਗੇ? ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਊਗੀ ਸੀਐਮ? ਹੂ ਟੋਲਡ ਯੂ? ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ। अगला सवाल। मेरा एक बड़ा आपके पंजाब मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो है या नहीं है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2017 में आप मंत्री थे और पंजाब विधानसभा में इन ट्रांसपोर्टों को भंग कर दिया गया था, जो अभी फिर से रिवाइव कर दी गई और इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत रिएक्ट कर रही है। देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए,
The policy will have everything that you are asking for, but you wait for the policy. हाँ जी, सर एक सवाल सर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे सर इधर okay. सर दो सिंपल सवाल हैं। एक विक्रम सिंह मजीठा के बेल के ऊपर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मिल के आप लोग उनको बेल दिला दिया है। वन, हाउ इज कांग्रेस पार्टी गोइंग टू परस्यू इट? एंड सेकंड इज पीएलसी ने जो हॉकी एंड गोल का खेला है, उन्होंने कहा कि हम गोल करेंगे। कौन कह रहा है गोल करे? कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो पार्टी सिंबल है, उन्होंने कहा अब हम गोल करेंगे। तो दो चीजों पे सवाल है। जो खुद गोल हो वो हिलने लायक है? चिड़ी छिक्का जिहा लैके आए खड़ जाता है। इनू कोई खेल के दिखा 15 मिनट, मैं चैलेंज करदा खेड चिड़ी छिक्का। जे 2 मिनट उल्ट के ना डिगे तो मेरा नाम हटा दिओ। मारदे आ गल्लां हवाई, गोल कर दूंगा। गोल होया नहीं उदन, गोल होया नहीं। 70,000 कुर्सी के उत्ते 700 बंदे ते भाषण दे रहा सी खाली कुर्सियां नू। क्या गोल हो गए तेरे? देख घरे बह रिटायर्ड लाइफ लीड कर। ते जेड़ा सुल्तान घोड़ा लिया सीगा दोबारा किसी ने चढ़ा के लाया उत्ते। विक्रम सिंह मजीठिया हाँ की जी। बेल पर आपको क्या कहना है? मुझे सब जुडिस मामले पे कुछ नहीं कहना। सर आप पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं सर। जी। आपने कहा 2017 की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चला देंगे और एक ही बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप ये लागू करवाने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब तक आप सिस्टम में आएंगे नहीं सर, तो ये पंजाब मॉडल लागू कैसे होगा? भाई साहब मैं पिछले 5 साल सिस्टम में ही था, उससे पहले 5 साल सिस्टम में था। सिस्टम में यही लड़ता रहा हूं और करता क्या रहा हूं कि भाई कभी आ छड़ी पर ये चीज नहीं छड़ी। पहली कैबिनेट के भी तब मैंने ये कहा था कि भाई आप ये बड़े बड़े परिवार। और केजरीवाल क्या कर रहे हैं? भाई केजरीवाल की कर रहे हैं? केजरीवाल ने 2 जोना की पॉलिसी तोड़ के 4 जोना की करके दीप मल्होत्रा ਨੂੰ देती, ब्लैक लिस्टेड। और वो कहना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂਗਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦੂਗਾ ਬੈਠ ਵੇਚਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣਗੇ ਉਹ। देयरफॉर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जे मैं लड़ रहा मैं खड़ा उत्थे ही, ना मेरी हट्टी चलती है, ना मेरा ठेका चलता है, ना मेरी दुकान चलती है, ना मेरा बिजनेस चलता है। 50,000 रुपये जी तनख्वाह आती है वही लेना। और अगली बार अगर जितया दूसरी ये लिख लो आज टका के, दूसरी पेंशन नहीं लवांगा, दूसरी पेंशन नहीं लवांगा। भुखा राजदा भुखड़ नहीं राजदे। 68 पेंशन लेंदे आ बड़े बादल वर्गे, इन्होंने शर्म नहीं आती? भाई आम आदमी पार्टी वाले घसुन मुक्की हो गए। हरेक थावां दे उत्ते ये गल्लां होंदियां ने। देयर विल ऑलवेज बी, तुसीं सारिआं नूं ते खुश कर नहीं सकदे, लेकिन हरजोत इज अ पर्सनल फ्रेंड, अ वेरी प्रॉमिसिंग मैन। वी विल टॉक टू हिम। असीं उहनूं बहुत प्यार करदे हां। साडे सारे कांग्रेसी वर्कर साडे आपदे है। वी विल सेटल इट एंड सॉर्ट इट आउट बंद कमरिਆਂ 'ਚ। देखो ज्यादा तो डिले हो ही नहीं सकता जी, हुण ज्यादा तो डिले हो ही नहीं सकता, लेकिन पार्टी का एक अपना सिस्टम है। असी वेरीफिकेशन होंदी है, स्क्रीनिंग कमेटी होंदी है, फिर ऊपर जाके हाईकमांड उन्होंने टिकटा अनाउंस कर दी है। तो आई थिंक मे बी इन दी फर्स्ट लॉट कुड कम इन दी नेक्स्ट 1 वीक। एक यार या तो वो पूछ लो या वो पूछ लो। ये भाई मैं 2 लाख बार बोल चुका हूं, आपने नहीं सुना तो मुझे कोई उसकी वो नहीं है कि अगला इलेक्शन हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। तुमने समझा? सबसे पहली बात ही नवजोत सिद्धू जब स्टेज पर चढ़ता है सब तो पहला गल ही ये करता है, और वो एंटरप्रेन्योरशिप के उत्ते, रोजगार के उत्ते, एम्प्लॉयमेंट के उत्ते वी हैव अ वेरी बिग प्लान इन द पंजाब मॉडल। चाहे वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है। पंजाब का नौजवान हुण तो
रोजगार मंगेगा नहीं, रोजगार देगा। और तुहानू मैं प्रूव कर दूं, तुहानू किसानी दे उस मॉडल दे विच ही मैं प्रूव कर दूं कि किसानां दे नाल नाल जिहड़ी प्रोसैसिंग है वो नौजवानों के हथ होएगी। तुसीं प्रेस चों अच्छा देखी भाई कोताही ना हो जाए। हाँ मैनू नहीं पता कि लिखिया नहीं। बिल्कुल महाराज, अगर तुसी एक मिनट ध्यान नाल सुनो यार, तुम ध्यान नाल सुनो। मैं ना दारू दे पहला हक च सी, मेरे फादर ने मेरा पूरा कोटा कर लिया, मैं पींदा नहीं, मैं तो प्याज लसन भी खाता नहीं, वैजीटेरियन आदमी, ध्यान नाल समझ ला। लेकिन अगर विकदी है तो भाई पैसे किसी निजी जेब दे विच, सेठ दे जेब दे विच क्यों जाण, स्टेट के खजाने च क्यों ना आउण? यार एवें बोली ना, मैं कोई गल किधर नूं कर रहा, मैं गल कीती है उही हवाई गल्लां करी जाना, मतलब कोई गल चज दी करना। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस तरीके दे नाल योजनाबद्ध तरीके दे नाल असीं एक मिनट भाजी, असीं योजनाबद्ध तरीके दे नाल इहनूं स्टेट के खजाने च लिया के इहनूं डबल करांगे। लास्ट क्वेश्चन भाजी तुहाडा। महाराज ये मैनीफेस्टो तुहाडे कोल आएगा सामने, वो पार्टी ही तय करेगी। ध्यान नाल समझ ला इस गल नूं, ये जो कुछ भी होएगा ये पार्टी दे मैनीफेस्टो दे विच होएगा। ध्यान नाल समझ इस गल नूं। दूसरी गल ये कि इट इज अ कलैक्टिव थिंग, दी डिस्कशन विल हैपन, इट हैज ऑलरेडी हैपन ऑन मैनी ओकेजन्स। दूसरी गल ਜਿਹੜਾ अर्बन इंप्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ औरतों के लिए इसे माफिया की जेब चों कढ़ के औरतों के लिए डिसाइड किया है। ये सारिया चीज़ां पॉलिसी, एक मिनट तक पॉलिसी ड्रिवन होणगियां, इनू किसी इंडिविजुअल तक सीमित ना कर। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक सुखा गप्पी, राम मलाई जोड़ी, एक अन्ना एक कोड़ी।